Hello friends, how are you all? Hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 1 NCERT solutions. As you can see here, first question exercise 1.1 means question number first, calculate the molecular mass of the following. As I have already taught you while teaching the chapter that how to calculate the molecular mass. As you can see here, it's water, H2O. The molecular mass of water is H2O, 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen. Here we have taken atomic mass into the unit. So you know very well what is the atomic mass of hydrogen. Exactly we have taken 1.0084 and the atomic mass of oxygen is 16 unit, right? So as we multiply 2 into 1.0084, we get the answer 2.016 unit and 16 unit, that is 18.06016 unit, and we can write in the scientific figure 18.02 unit. Now question was what many of the students were asking, sir, we can't write that nearby atomic mass, as for example the hydrogen mass is 1 and oxygen mass is 16, so can we write like that? Definitely, no need to worry, we can write like that also. So the molecular mass of hydrogen will be 1, so 2 into 1 plus 1 into 16, that is equal to total 18 unit. Got it? Here since it is a molecular mass, so that's why we write in a unit. Now let's come towards the question number 2. Here you can see about the carbon dioxide. So what will be the molecular mass of carbon dioxide? 1 into atomic mass of carbon plus 2 into atomic mass of oxygen. As you have seen here, what is the atomic mass of carbon? 12.011 and the atomic mass of hydrogen 16. So after multiplying and addition we get the answer 44.01. So you can write 44 also as the molecular mass. Now if I talk about the methane, so the molecular mass of methane is CH4, its chemical formula. So 1 into atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen. 1 into 12.011 plus 4 into 1.008 unit. After multiplying and addition we get 16.043. So this was our question number 1. Now we are moving towards the question number 2. As you can see in this question number 2, calculate the mass percent of different elements present in the sodium sulfate. What does it mean? कहने का मतलब ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, right? So the chemical formula of sodium sulfate is Na2SO4. Now what you have to do, you have to first of all calculate the molecular mass of sodium sulfate, and after that you have to calculate the mass percentage of each and every element present in this compound. So first of all, the molecular formula of sodium sulfate is Na2SO4. Molecular mass will be sodium is 23, 2 into 23. Sulfur is 32, 1 into 32, and oxygen is 16, 4 into 16. So total will be 142.066 gram. Now mass percentage of an element. So what will be the mass percentage of an element? Mass percentage of an element is equal to mass of that element in the compound and molar mass of that compound into 100. As for example, in the sodium sulfate, what are the elements? You know very well, sodium, sulfur and oxygen. So first of all, we are calculating the mass percentage of sodium. So sodium is Na2, it's there, so 2 into 23 means 46, and total molecular mass of the sodium sulfate is 142 and into 100. So after multiplying and dividing, we get 32.379, that is equal to 32.4%. Now after sodium we are calculating about the sulfur mass percentage. So you can see here mass percentage of sulfur is equal to mass of sulfur upon molar mass of the compound into 100, right? So sulfur is only 1 and its atomic mass is 32.066. So 32.066 upon 142.066 into 100. After calculating, dividing and multiplying, we get the answer 22.57, which is nearby to 22.60. So this is the molecular or mass percentage of sulfur. Now last one, the mass percentage of oxygen. Can you tell me what will be the mass percentage of oxygen? As you have seen here, oxygen is, there is total 4 molecules. So 16 4s are 64 upon 142.066 into 100. So the right answer is 45.049, which is nearby 45.05%. So in this way you can calculate any
compounds each and every percentage. Similarly, if I talk about the calcium carbonate, देखो कोई भी कंपाउंड का अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, किसी भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड का सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल देना है. उसके बाद अगर मान लीजिए उस कंपाउंड के अंदर में जितने एटम्स जो एलिमेंट है, ऊपर में उतने एलिमेंट्स का जो भी एटम है उसका मास लिखेंगे, नीचे में टोटल पूरा का पूरा मोलिकुलर मास लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर जो आंसर आएगा वो एलिमेंट उतना परसेंटेज उस कंपाउंड में प्रेजेंट है. गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% O2 by mass. Dioxygen means O2. Now question is what are the given things in the question? Percentage of iron by mass is 69.9% and percentage of oxygen by mass is 30.1%. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख दो. तो यहाँ पर आयरन बाय मास परसेंटेज है 69.9 और ऑक्सीजन बाय मास परसेंटेज है 30.1. नाउ मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो. इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसका जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज दिया हुआ है. इंपेरिकल फार्मूला के अंदर में आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है. इंपेरिकल फार्मूला उसका 69.9% आयरन और ऑक्सीजन जो है डाइऑक्सीजन 30.1%. अब मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड क्या होगा? परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन. अब कितना परसेंटेज आयरन का मास है? 69.9%. और एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का? 55.85. तो इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 1.25. गॉट इट? अब आ जाओ रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड. रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड विच विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब देख लो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 30.1 जो है डायटम ऑक्सीजन का दिया है, तो 30.1 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1.88. नाउ द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन. आयरन का कितना होगा और ऑक्सीजन का? आयरन का जो हमने निकाला था तो 1.25 और ऑक्सीजन का जो हमने निकाला है 1.88. तो अब इस दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 125 बाई 188 तो आपका आएगा 1/1.5. इसको अगर आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 हो जाएगा. तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Fe जो है 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है 3 हो जाएगा. अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, इस सर क्या हम इसको पॉइंट या डेसिमल या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो नहीं, आपका होल नंबर में ही आपको नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का? सिंस वहाँ पे 1/1.5 था, 1.5 का मतलब तो समझते होंगे ना, 1.5. तो उसको हम लोग क्या है वो फ्रैक्शन में है, मतलब 15/10 मतलब 3/2 है. तो उसको हमको फ्रैक्शन को तोड़ करके होल नंबर लाना है. तो क्या किया हमने? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 एंड 1.5 2 ज़ा 3. तो टोटल क्या हो जाएगा? 2:3. तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? आयरन 2 मतलब Fe2 और ऑक्सीजन 3 मतलब O3. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen and 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितना होगा अगर 1 मोल कार्बन को हम लोग हवा में जलाएं, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं, 2 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी. गॉट इट? तो आप देखो, सबसे पहले तो बैलेंस द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिटन एज. अब जैसे तुमको पता है C + O2 = C2 होता है, राइट? तो एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन का मतलब O2, C + O2 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, C + O2 = CO2. सबसे पहला हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर. 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब 1C को अगर हमने 1 O2 के साथ जलाया तो 1 CO2 प्रोड्यूस हुआ. समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम O2 से जलाना है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन इज अवेलेबल. हियर इट विल रिएक्ट विथ 0.5 मोल of carbon
टू गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख लो आप लोग 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो कितना ग्राम कार्बन चलेगा, क्योंकि 32 ग्राम रहेगा, 16 या 32, तो वो 32 ग्राम अगर हमारा O2 रहेगा तब जो है हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन रहेगा। यहाँ पे क्या है, उसका आधा है, तो आधा मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो अगर 16 ग्राम O2 होगा तो 0.5 ग्राम कार्बन होगा, तो उस दोनों को मिलाओगे तो टोटल हमारा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये जो है क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो कोई भी चीज़ को याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको पहले आप बैलेंस कीजिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देख लो यहाँ पे 2 मोल है कार्बन का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 16 ग्राम डाइऑक्सी, 16 ग्राम का समझ रहे हो, मतलब O2 जो है सिर्फ 16 ग्राम, तो इट्स अ लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। द 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन कैन बी combined with only 0.5 mole of carbon to give 22 gram of carbon dioxide। तो यहाँ पे आपने देखा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो। 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी दिया हुआ, राइट, किस चीज़ का, सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला CH3COONA। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका मोलर मास निकालोगे, राइट। मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, मोलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। ये कितना दिया है क्वेश्चन में, सोडियम एसीटेट का मोलर मास दिया हुआ है 82.0245, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप देख लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.375 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना जो है हमारा सोडियम एसीटेट का क्रिस्टल्स है, जो सॉल्यूशन में इतना हमारा सॉल्यूट है सोडियम एसीटेट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इन 500 ml कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 1 लीटर में इतना है तो 500 लीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 1 लीटर से। 0.375 इंटू 1 लीटर मतलब 1000 ml और उसको 500 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 2 जा 1000 और 0.375 को 2 से डिवाइड करो आप, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर आएगा 0.1875 मोल। सो द मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245। सो रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 इंटू 0.1875। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पता है, 15.38 ग्राम। गॉट इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को समझो और जो जो दिया है उसको लिख दो और जो जो मांग रहा है वहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दो। देखो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द सैंपल दिया है 69%। अगर सबसे पहले तो आप मोलर मास निकाल लो नाइट्रिक एसिड। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का, HNO3, राइट। HNO3 का आप निकालोगे तो उसका मोलर मास हो जाएगा 63 ग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब देख लो 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड में तो 69 ग्राम जो है हमारा सिर्फ मतलब 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड कंटेन 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 69 ग्राम जो है नाइट्रिक एसिड का मास हो जाएगा। अगर हम नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालें तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल से 16 3 जा 48, तीनों को ऐड किया तो 63 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3, तो कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3, 69 अपॉन ये जो 63 अभी आपने निकाला था मोलिकुलर मास, उससे डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका 1.095। कितना आएगा 1.095 मोल।
तो अब आ जाओ 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जो हमने वैल्यू निकाला था इससे पहले। तो वहाँ पे देख लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। इस दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 70.92 मिलीलीटर, कितना 70.92 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हो गया 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर। अब आ जाइए कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन 1.095 मोल डिवाइडेड बाई 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.44 मोल पर लीटर। तो हमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर मोल, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर मोल। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको यहाँ पे 100 ग्राम का कॉपर सल्फेट है, उसमें से कार्बन कितना निकलेगा। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं थोड़ा दिमाग पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कार्बन निकालना है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कार्बन है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कॉपर, डेफिनेटली 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कॉपर। तो मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलिकुलर मास कितना होता है 63.5 प्लस 32 प्लस 64। क्यों, कॉपर का 63.5 हमारा एटॉमिक मास, उसके बाद आ जाए सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 हो जा 64। इस तीनों को ऐड करोगे 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे आपने देखा इस तीनों को जब आप ऐड करोगे CuSO4 को, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 तो कितना आएगा 159.5। अब सिंस 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है 63.5 ग्राम। तो 100 ग्राम CuSO4 में कितना होगा 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100। जब इस दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 39.81। कहने का मतलब ये 100 ग्राम ऑफ CuO4 में इतने कॉपर है, तो कितना ऑब्टेन होगा 100 ग्राम में 39.81। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन।